नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन प्रोसेस की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं याचिकाकर्ता के वकील रविशंकर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम शशिधर रेड्डी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर में खालिद जहांगीर और सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। सबसे पहले हम चलेंगे रविशंकर साहब के पास। आपने पिटीशन जो है दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। ये पिटीशन किस आधार पर दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में? क्या वजह है जिसके आधार पर आपने इसको चैलेंज किया है? I'm comfortable in talking in English. The reason is I can't. No problem. The main issue is, see, in Andhra Pradesh and Telangana, there was one problem earlier, mixing of 7 mandals in during the division of Andhra Pradesh, that reorganization of Andhra Pradesh. Unfortunately, we made several representations to this. Mr. Reddy and myself, we made several representations, and that was not considered. While doing that, the Attorney General gave an opinion that saying that as long as Article 170 is there, you can't do anything, because even the any enactment which says that notwithstanding anything contained in any other act or constitution, still you can't do anything. And as long as this delimitation and also the census are concerned, next delimitation could only be done after 2026 and beyond that 5 years, and therefore you can't do it. Now, very surprisingly, in Kashmir, divorce all these opinions and their articles and clauses, and particularly Article 81, 82, 330, and Article 3, 170, which are all speak about actually the next, the entire process will be frozen, because the South India actually is losing because of population reduction in population, and therefore seats are reduced. And Mr. Arun Jaitley during 2000 in Parliament, he gave a speech before introducing the bill, saying that because it will be SC, STs and the states which have lesser population will be they will be deprived of their seats. And therefore, till 2026, it is frozen, and nobody can do anything. And to that extent, there is an amendment brought in. After that, in Jammu and Kashmir, the Jammu and Kashmir Parliament Assembly has introduced to their constitution Section 47. Section 47 also speaks about freezing up to 2026. And that was being questioned in Supreme Court. Supreme Court upheld the 47, saying that you can't increase the seats up to 2026. And the other provision is Delimitation Act and election laws. Election laws speaks about Section 11 and Section 9 of Delimitation Act says you can only after 2002, the Delimitation Act, the delimitation order will be conducted up to 2008. Thereafter, if you want to do any delimitation or minor updating of Delimitation Act, you have to do only, it has to be through Election Commission only, nobody else. And thereafter, there is a provision in 2019, they introduced the reorganization of Jammu and Kashmir, in which Section 62, 63 speaks about 60, 61, 62, 63 speaks about the duty and responsibility of only Election Commission to update the delimitation order of 2008, nothing else. Therefore, delimitation cannot be done by anybody else except delimitation of updation of delimitation cannot be done but except Election Commission. That apart, the last census conducted in Jammu and Kashmir is 1995, and delimitation for the entire country has been done. Census has been done in 2001, delimitation,
and the census for the entire country was, except Jammu and Kashmir, was done in 2011. Now this particular enactment of 1015 of 63/2020 speaks about conducting 5 states, that is including northeastern state, four states, and also Jammu and Kashmir. However, the delimitation has to be taken and the census of 2011 has to be taken for Jammu and Kashmir. 2001 has to be taken for other 4 states of northeastern states. That means the census was taken in 2001, but not in 2011 for Kashmir. They want to take census of 2011 for Kashmir. For the remaining other states, it is only 2001. So in Jammu and Kashmir, actually, previously 3 times, right from 1957, the delimitation, the last census was conducted in 1971. Thereafter in 2001. And how come there is 2011 census only for Jammu and Kashmir? Leave apart whether it is the power of election commission or delimitation commission or anybody. What about Article 170? Non-obstante clause cannot improvise upon or override the constitutional provision. 170 is for the entire country. And these 47 and Article 370 is removed for the Jammu and Kashmir. However, 47 is also removed for Constitution. Jammu and Kashmir Constitution is removed and joined on 5th August 2019. Kashmir has become one nation, one constitution. In Keshavananda Bharati said, the constitution is unique and constitution is supreme. Supreme constitution is only one for the entire country. Once constitution is one, and Keshavananda, particularly Mr. Khanna has and just have very. You made your position very clear. I want to bring in Khalid साहब. Khalid साहब, रवि शंकर साहब ने बहुत साफ-साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क के साथ जो एक अड़चन थी धारा 370 उसको अब हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर का पूरे देश के साथ जो आपस में मिल मिलाप होना था वो पूर्ण तरह से हो गया। जो सन 47 की गलती थी वो अब खत्म हो गई है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रोविजन अगर आप देश के साथ पूरा मिला चुके हैं, जो कि बीजेपी का कहना है, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रोविजन बना के डिलिमिटेशन कर रहे हैं, ये कुछ जायज नहीं है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब इसमें कुछ किसी को कुछ आपत्ति है। अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कमीशन बनाया गया था डिलिमिटेशन का, इट वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक ऑटोनमस बॉडी होकर इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑन द ले डाउन नॉर्म्स। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, इट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। और मुझे लग रहा है कि इट इज द इंटरेस्ट ऑफ जेएंडके दैट दिस डिलिमिटेशन शुड हैव टेकन प्लेस, क्योंकि बहुत प्रोविंस में, बहुत डिस्ट्रिक्टों में ये भी कहा जाता था कि पुराने डिलिमिटेशन जो हुए हैं वो ठीक नहीं हुए। तो मुझे लगता है इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन कि हाउ दे सी द इंटरेस्ट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दैट दे शुड go for the delimitation. बाकी रविशंकर जी ने जो कहा है, he is a lawyer, he is an advocate, इसकी कोर्ट में जाएंगे। मुझे लगता है कि is prerogative to go in the court, but as a decision of government of India, I think they have done it in the national interest, and moreover, this is a constitutional body headed by the retired Supreme Court of Judge Ranjana Desai. So, मुझे लगता है कि rather give any political color, or maybe there might be some issues. I think the courts are there, Supreme Court is there. I think everything will come out. But as far as we people are concerned, that it is a taken decision by New Delhi, and we are waiting that this delimitation reports will come out so that the people's government can be formed, election should take place. Okay. मैं रविशंकर साहब को दोबारा से लेना चाहूंगा, उसके पहले मैं तारिक आमी साहब के पास जाना चाहूंगा। तारिक साहब, अगर आप I just want to add one word. जस्ट एक सेकेंड। तारिक आमी साहब, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक आपका ऑफ है।
रविशंकर साहब, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, ये पहला चैलेंज नहीं है जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर। तारिक आमिर साहब इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये पहले भी एक चैलेंज माउंट किया जा चुका है? उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, मैं दोनों मुद्दों पर आपसे पूछूंगा। मैं स्पीकर एक गुजारिश है, but I'm not रविशंकर, substantiating my contention. I just wanted to say, सर, the Jammu and Kashmir National Panthers Party, when approached the High Court, and High Court has upheld 47, then it came to Supreme Court. Supreme Court have very specifically said the Delimitation Act has become inappropriate by 2007, and therefore it is redundant. So reconstitution of delimitation would only take place in 2026, not before that. जी, तारिक आमिर साहब, आपने लीगल आर्ग्यूमेंट भी सुन लिया है, आपने पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट भी सुन लिया है, अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बहरहाल मेरी राय, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है 2019 में ही, और वहां हमने 2 पिटिशंस दायर की हैं और लोगों ने भी, एक 370 के हटाने के बारे में, उसे इनऑपरेशनल बनाने के लिए, और दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हमने चैलेंज किया। हमारी नजर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हमने सुप्रीम कोर्ट से ये प्रेयर किया है कि इस पर सुनवाई हो, और एक एप्लीकेशन मूव की हमने, देर ना की जाए। वो इसलिए भारत सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिनको रोकना जरूरी है, और अगर रोका नहीं गया तो लाजमी तौर पर आने वाले वक्त में वो इरिवर्सिबल बन जाए, जिसमें हमने जिक्र किया है डिलिमिटेशन कमीशन का भी। देखिए, मुझे हैरानगी है, एक वक्त था कि हमारे बारे में कहा जाता था, जम्मू कश्मीर के बारे में, कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं है, 370 एक रुकावट है। जब हमने जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की, जम्मू कश्मीर असेंबली ने डिलिमिटेशन के बारे में, इस प्रोसेस को शुरू करने के बारे में, हमने कहा जब सेंसस होगा पूरे मुल्क में, उसी के आधार पर मुल्क की सतह के साथ नेशनल सतह में जब ये प्रोसेस शुरू होगा, जम्मू कश्मीर में भी ठीक उसी वक्त डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए। क्या ये इंटीग्रेशन की तरफ एक कदम नहीं था? हम तो कौमी दायरे में आना चाहते थे, साथ चलना चाहते थे, सेंसस भी मुल्क के साथ और फिर डिलिमिटेशन भी मुल्क के साथ। उसे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली की जो अमेंडमेंट है, राय को जायज ठहराया। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भारत सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमें पूछे बिना, यहां की असेंबली को भंग करके, तब तक सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, मेरे भाई जहांगीर साहब जानते हैं। तो बहरहाल किसी सतह पर जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के, किसी भी फोरम में डिस्कशन नहीं हुआ, और बल्कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब पास हुआ, ये कानून बना, उस वक्त वर्चुअली लॉकडाउन हुआ, इंटरनेट तक रोका गया, टेलीफोन लाइनें भी बंद रही। मेरे ख्याल में वो अब उस पर बहस करने की जरूरत ही नहीं, वो
एक ऐसी हकीकत है जिससे जुटलाया नहीं जा सकता। नहीं, हमारे बारे में ही फैसला लिया जाता है, जम्मू के बारे में, कश्मीर के, लद्दाख के बारे में, और हमें हमारी रसाई नहीं है टेलीफोन की भी, हमारी राय ही नहीं, बहस ही नहीं, सिविल सोसाइटी वगैरह। ये आंध्रा में नहीं हुआ, ये यूपी में जब 2 रियासतें 3 रियासतें बनी तब नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, वहां बहस हुई। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, मैंने ही 2003 में एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में, और उस वक्त कई पॉलिटिकल फोर्सेस, देश के अंदर भी देश से बाहर भी, ये चर्चा था कि जम्मू कश्मीर को बांटा जाए कई एरियाज में, खत्ों में। तो ये एक मुद्दा था बहस का हमारे पॉपुलेशन में। तो इस कंसर्न को देखते हुए मैंने रेजोल्यूशन लाया, जो भी फैसला होगा जम्मू कश्मीर के बारे में, जो भी राय कायम की जाएगी जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के बारे में, जम्मू कश्मीर लद्दाख की वहदत के अंदर, यूनिटी के अंदर ही होगा, यानी इसको तोड़ा नहीं जाएगा। वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। आज ये ठीक है असेंबली का पुराना रिकॉर्ड कहां होगा, लेकिन अभी भी मौजूद है वो। तो पढ़ लीजिए, असेंबली ने 2003 में रिट्रेट किया था। क्या था ये इरादा, क्या था ये इरादा, क्या थी ये विल थी, जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं करना है, कुछ भी हो। ऐसा हुआ, बाद में तकसीम भी हुआ और डाउनसाइज भी हुआ। बहरहाल किसको पूछ कर किया गया? पार्लियामेंट ने किया, माना, लेकिन पार्लियामेंट के अलावा यहाँ और भी लोग हैं, और भी इंस्टीट्यूशन हैं, पहले भी रहे हैं, सोसाइटी मौजूद है। हमें डिप्राइव किया गया इस प्रोसेस में हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी से, पार्टनरशिप से, पार्टिसिपेशन से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को डिप्राइव किया गया। इसी वजह से हमने चैलेंज किया ये सुप्रीम कोर्ट में। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे जी। शशिधर रेड्डी साहब, आप कह रहे हैं कि बाकी मुल्क को आपके साथ आवाज लगानी चाहिए। शशिधर रेड्डी साहब जो है वो डिलिमिटेशन के प्रोसेस में बहुत ही इंटरेस्टेड है। उन्होंने मदद किया है इस पिटीशन को फाइल करने में। वो आपकी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले पूरा कर लूंगा जी साहब। अगर ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अभी तो चाहिए था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को चाहिए था ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेती। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये एक सवाल है एक शहरी होने के नाते। और दूसरा मुझे ये बताइए, ये जो जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ, किस एक्ट के तहत हुआ? अब भी 2002 का ही एक्ट है, कोई नया एक्ट बना नहीं है। अब उस एक्ट में दो चीज हैं, दो दायरे इख्तियार हैं। एक इख्तियार है कमीशन के पास कि वो सीटों को बढ़ाए और साथ ही साथ डीलिमिट भी कर ले, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनके लिमिट्स को भी मुकर्रर कर ले। अब आप डीलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, पहले ही आप कह रहे हैं कि आप 7 सीटें बढ़ानी है। ये मुकर्रर करना था डिलिमिटेशन कमीशन ने। डिलिमिटेशन कमीशन को भी इससे डिप्राइव किया गया। थोड़ा सा हमारी बात को सुन लीजिए, कहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ख्याल रखा गया, कहां ले डाउन प्रिंसिपल्स को, प्रोसीजर्स का ख्याल रखा गया। मैं शशिधर रेड्डी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने उस वक्त भी मेरे साथ हमने आपस में राबिता भी कायम किया। और इसी वजह से हमें ये मायूसी ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर पायमाल किया जाए, मुल्क का फ्यूचर क्या होगा? आप 7 सीटें बढ़ाइए, लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं। अब फंडामेंटली अभी आप देख लेंगे, हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस कोई जवाजत होती है, और
सेंसस क्यों? पॉपुलेशन इज द रेशियो। फंडामेंटल जो बुनियाद है, बुनियादी मतलब जो बुनियाद है किसी डिलिमिटेशन प्रोसेस के लिए, वो पॉपुलेशन का साइज है। आज हम गुजारिश करना चाहते हैं, जरा देख लीजिए 2011 का ही आप सेंसस देख लीजिए। क्या अभी आप क्यों आप समझते हैं कि जम्मू आपका है और कश्मीर आपका नहीं है? जम्मू भी देश का ही है और कश्मीर भी देश का ही है। हम तो चाहते हैं कि आप पूरा देश हमें अपनाएं। हम तो देश के सांचे के अंदर रहना चाहते हैं और इंसाफ मांगते हैं। लेकिन जहां आपको सूट करता है वहां हम अपने हो गए, जहां आपको सूट करता है वहां हम पराये हो जाते हैं। ये दोहरा मिजाज जो है, डबल स्टैंडर्ड, ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक नहीं है। इतना कहना है मैंने। शशिधर रेड्डी साहब, ये बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर की आवाज के साथ अपनी आवाज कैसे मिलाई, क्या वजह है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो सबको मतलब बड़ी ताजुब की बात है कि जब 5 अगस्त 219 के बाद 370 सबको खत्म करने के बाद 15 अगस्त 2019 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि एक नया न्यू ऑर्डर, एक देश और एक कानून, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन थी वो सब ठप हो गई, इनफ्रैक्चस हो गया, और उसके तहत जो बने कानून सब इनफ्रैक्चस हो गए। ठीक है, मगर बाद में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया कश्मीर का, ना हम 370 के बारे में टच करेंगे, न रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में टच करेंगे। तारिगामी साहब ने बहुत दुरुस्त फरमाया कि कई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं इन दोनों एक्शंस के बारे में जो मरकज की सरकार ने ली। तो हम सिर्फ यही बात पर गौर कर रहे हैं कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीट बनाने की बात हुई थी, तो उस वक्त हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। होम मिनिस्ट्री ने अटॉर्नी जनरल से अपना ओपिनियन मांगा। अभी रविशंकर साहब ने शुरू में इसका जिक्र किया और उसमें साफ कहा गया कि किसी भी सूरत में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड कर सके। ये मतलब नेशनली इंटरनेशनली जो जानकार हैं लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, दिस कहते हैं। तो जब सीट बढ़ाने की बात आंध्र और तेलंगाना में नहीं हो सकी तो हम खामोश रह गए, क्योंकि उस वक्त जो हमने सुना है, कुछ लोगों ने उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी कि सीट बढ़ाने वाली बात उनके पार्टी के जो हमारे स्टेट के लोग हैं, तो उस वक्त कहा गया आपके 119 उम्मीदवार भी नहीं है, 153 किस लिए मांग रहे हैं। तो पॉलिटिकल डिसीजन था कि तेलंगाना में सीट ना बढ़ाए। ठीक है, दैट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि सीट बढ़ानी पड़ती थी तो उसका प्री रिक्विजिट यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। जो 84th अमेंडमेंट 2001 में अमल में आया, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट 202 बना, ये सब में फेरबदल करने की जरूरत पड़ती थी। केंद्र सरकार ने ये नहीं करना चाहा, वो उनका डिसीजन था, ठीक है, हम उस वजह से खामोश रह गए। लेकिन जब कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उसमें उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। तारिगामी साहब ने बहुत अच्छा कहा, 2003 में उनकी रेजोल्यूशन थी कि स्टेट को ना बांटा जाए। वो सब कश्मीर के लोगों के उनके दिल की जो बात थी वो रेजोल्यूशन बनकर वहां आई, तो वो बात है, वो कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में वो चलता रहेगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस ये रहा कि जब आर्टिकल 170 सीट बढ़ाने के लिए इट डज नॉट परमिट, 2026 के बाद जो पहला सेंसस पॉपुलेशन की गिनती होगी वो 2031 में हो सकती है, उसके बाद हो सकती है, उससे पहले सीट बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है। ये आर्टिकल 170 और जो पार्लियामेंट में तो अलग कानून है इलेक्शन लॉज, उसमें साफ है। उसके बावजूद
जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कश्मीर में आया, उसमें कहा गया कि 7 सीट बढ़ाएंगे। तो हमने ताजुब किया कि प्रधानमंत्री जी की जो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की एक नई बात उन्होंने कहा, उसको सब वेलकम किया, जो लोगों ने वेलकम करना था। लेकिन जो हकीकत में हो रही है ये उससे हटकर है। जम्मू और कश्मीर का अलग कानून नहीं हो सकता है। जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू के तहत ही ये बनता है। 2019 5 अगस्त से पहले कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, जिसके तहत असेंबली की रीऑर्गेनाइजेशन डिलिमिटेशन होती थी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोकसभा की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। पहले से डिलिमिटेशन होती थी, ये पहले से चलता आ रहा है। अभी एक ही कानून 170 शुड अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर और ईयर। हमारा एक ही मकसद है। जो तेलंगाना में हम बैठे हैं, हमारी ये मांग रही, यहाँ के लोगों की मांग थी हमारी सीट बने, उसको नहीं किया गया। ठीक है, आप जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज करते हुए, ये मैं समझता हूं कोई कोर्ट या कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और खैर ये तो अभी आगे कुछ दिनों में केस फाइल हुआ है, आगे कुछ दिनों में पता चलेगा। मैं समझता हूं कि इसके बाद 2 चीजें हो सकती है। मुझे यहाँ पर आज हैदराबाद में किसी पत्रकार ने पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस, तो मैंने कहा कि मरकज की सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि डिलिमिटेशन कश्मीर में करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि आज की जो कानून के जो सिचुएशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, उसको नजरअंदाज करके जिस तरह की कानून बनी है वो गलत है। और सीट बढ़ाने के हद तक मैं लिमिट कर रहा हूं अपने आप को। बाकी चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार चलता रहेगा। हमने देखा बड़े बड़े केसेस कितने साल चलते रहे, बाबरी मस्जिद का कितना लंबा उसका सफर रहा। ये सब चीजों में मैं नहीं जाना। तो जो आज आप अगर जम्मू और कश्मीर में मरकज की सरकार अगर सीट बढ़ाना चाहती है तो ये जरूरी हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में हम यही चीज को लेकर गए हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंसर्न जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 170, 81, 82, 330, 333, 4 जो भी है, उन सबको अमेंड करना होगा। और जब तक आप अमेंड नहीं करते या आप कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दूसरी बात यह है कि आप अगर अमेंड करते हैं, आप नहीं तो छोड़ दीजिए, सीट बढ़ाने की बात नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं, सीट बढ़ाना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे तो हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए भी सीट बढ़ाने की हमारी मांग रहेगी कि एक स्टेट के लिए एक यार्डस्टिक और दूसरी स्टेट के लिए दूसरी यार्डस्टिक नहीं हो सकती है। इस केस में हमने क्लासिफिकेशन की भी बात लाई है। रविशंकर साहब ने बताया जम्मू कश्मीर में 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से काम करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। बाकी पूरे मुल्क में 2001 के पॉपुलेशन के रेशियो से डिलिमिटेशन हुआ है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 का भी ये वायलेशन है और ये बहुत सीरियस वायलेशंस हैं। तो मैं समझता हूं कि मरकज को इसके ऊपर ये केस जो चल रहा है इसके मद्देनजर एक सोचना, बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये उनको आगे क्या करना है। जो भी करेंगे पूरे मुल्क के लिए एक ही दस्तूर होगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक ही कानून होगा और उसके तहत केंद्र के मरकज की सरकार चाहे उनकी कितनी भी ताकत हो उसको बदल नहीं सकते। दस्तूर को बदलना है, अमेंड करना है तो बेशक कीजिए, आपके हक में है, आप जरूर कर सकते हैं। कई चीजों में हम करते आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कई चीजों में किया है, आज तो 110 से बढ़ के भी हो गए हैं। तो ये मतलब ये बहुत, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 60 में एक चीज कहा गया, 61 में एक चीज कहा गया, 62 में एक चीज कहा गया और 63 में ये साफ कहा गया इवन इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कि आपको 2026 के बाद ही इसको करना पड़ेगा, सीट बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूं, मैं वकील नहीं हूं, थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं पब्लिक लाइफ में रहने से,
मैंने मतलब कई चीजों के बारे में डिस्कस किया, जानकारी रखता हूं, लेकिन इतनी खराब कानून मैं समझता हूं कि आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाई। इतने डिफेक्टिव कानून, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपके कानून के अंदर। और दूसरी एक चीज रविशंकर साहब शायद वो उस वक्त नहीं था, डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में सेक्शन 2F है। 2F में ये कहा कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उस वक्त का जो डिलिमिटेशन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड किया था। ये इसीलिए एक्सक्लूड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना था। लेकिन अब क्या हुआ है, जब कोई पार्लियामेंट्री एक्ट को अमेंड करते हैं तो अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं। डिलिमिटेशन एक्ट को भी 2 बार अमेंड किया है, उसको अमेंडमेंट एक्ट लाकर किया है। लेकिन आर्टिकल में सेक्शन 61 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या कहते हैं कि सेक्शन 2F इज डीम्ड टू बी अमेंडेड। वाले डीम्ड टू बी अमेंडेड ये कहां से आया है? किसी कानून, मतलब मैंने बहुत से लोगों से, मैं और जैसे रविशंकर साहब देखकर बहुत सोचने, बहुत रिसर्च किया है, जगह जगह बड़े बड़े एक्सपर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी हम लोगों की बात हुई। वो कहा कि डीमिंग प्रोविजन कहीं नहीं है। इतना मतलब ये बहुत ही ये मतलब ये जो जिस तरह से कानून लाया गया है, इट्स अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस तरह से शशिधर रेड्डी साहब के साथ हमारा संपर्क जो है लगता टूट रहा है। खालिद साहब, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका क्या कहना है? देखिए, इस मामले में 2 बातें बहुत साफ हैं। जब जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन की बात होती है, देश में एक संविधान की बात होती है, तो ये सब जो तर्क हैं, जो लीगल पहलू है, इन सब को सरकार को इन सब का सेटिस्फैक्टरी आंसर सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा। पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स एक तरफ। जी, तो देखिए, रेड्डी साहब बताया, मैं उनकी बातें गौर से सुन रहा था। मुझे लगता है अगर रेड्डी साहब और मतलब हमारी देश की एक ऐसी हमारी जो कंट्री की, आवर कंट्रीज बेस इज सच अ बेस दैट we make laws, parliamenters make laws, but the Supreme Court, the judiciary oversees it. तो रेड्डी साहब ने भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि the judiciary is a top which takes the considerations, कौन से लॉ बनने चाहिए, कौन से नहीं बनने चाहिए। मुझे मैं वो चीजें मैं उन्हीं तक रखता हूँ। मैं खाली आपको जम्मू कश्मीर की बात ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट कैसे कहते हैं कि डिलिमिटेशन से बाद ये हमारे पहले 12 डिस्ट्रिक्ट थे, आज 20 है। 52 तहसील थे, आज 207 तहसील से। ये पुराने डिलिमिटेशन और आज तक कि मैं बता रहा हूँ कि कितने बढ़ गए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इन लोगों को वंचित करते हैं वोट से, उन पॉलिसी से जो भारत सरकार की है। दैट्स ऑल्सो वन इंडिया। और दूसरी बात की this delimitation report जाएगा, it's a crucial and it's important that it will start a political process in J&K. और भारत सरकार ने जब ये फैसला लिया हम डिलिमिटेशन कमीशन लेंगे, तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ J&K। ठीक है, मतलब तेलंगाना में सीट कम मिली हो जाते हैं, दैट कैन बी आर्ग्यूड एंड उसमें जुडिशरी ले सकती है। लेकिन 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई और उसमें भी 16 सीटें SC ST को चली गई है, कश्मीर में 1 सीट दी गई एंड असेंबली मेंबर बढ़ गए। मुझे लगता है ओवरऑल इसमें ये देखा गया है कि एक रीजनल डिस्पेरेसी ना हो। और मुझे लगता है डिलिमिटेशन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड वी शुड ट्रस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया रादर देन उनकी लेजिटिमेसी और इंटीग्रिटी पे सवाल करे। ठीक है, मतलब इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आई कैन गो टू कोर्ट, रेड्डी साहब के टू कोर्ट, इससे ये हो जाता है कि ये होना चाहिए, मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चीजें अच्छी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट जल्दी खत्म हो ताकि यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो। फिर सीटें कितनी ज्यादा हुई कम हुई, पीपल डजंट सी दैट, बट पीपल सी की उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी ज्यादा होगी। ये हमारे जैसे नेताओं को होता है कि यार मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होगी तो अब बड़ी क्यों होगी।
छोटी किसी को हो, बड़ी हो, इट डजंट अप्लाई कि मेरी वजह से कोई कंस्टिट्यूंसी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए. इट्स कमीशन. वी सीज दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टेड लीडर. और यार मेरी वजह से मैं आपको कहता हूं कि मेरी सीट कम करो, मेरे ये 4 एरिया मेरे एरिया में लगा दो. मैंने कहा वैसी चीजें हम चाहते हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर, लेकिन एक कमीशन जो होता है एक इंटीग्रेट होता है और ये अपने एक रूल्स और पैरामीटर के ले डाउन में जो इनका होता है उसके ऊपर चलते हैं. मुझे लगता है टू एंड माय दिस submission is that कि the courts are there, the judiciary is there to oversee कहाँ पे constitution ठीक चल रहा है, कहाँ पे गलत चल रहा है. But nevertheless, as a Kashmiri, as a citizen of J&K, I think what is utmost is that we should respect our institutions and we should trust our government. Prime Minister जिन्होंने कहा कि जैसे डिलिमिटेशन खत्म होगा लोग अपनी सरकार यहाँ पे चुनेंगे और इलेक्शन हो जाएंगे. खालिद साहब, इस बात से जो आपने आर्गुमेंट किया इससे कोई मना नहीं कर रहा. जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जो कि पिछले 3 साल से जो है बंद पड़ा, उसको जाहिर तौर पर बहाल होना चाहिए. रेड्डी साहब, एक सवाल मैं बस उनसे पूछना चाहूंगा. डिलिमिटेशन भी होना चाहिए, लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ठीक तरीके से. ये जो आपके तमाम आर्गुमेंट हैं, इस पे ना रेड्डी साहब इनकार करेंगे, ना तारिगामी साहब जिनका संपर्क हमसे टूट गया है, और ना रविशंकर साहब जो कि कानून के जानकार हैं. उनका सिर्फ ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के लिए लागू होता है, जो आइन जम्मू कश्मीर के लिए है, वही संविधान जो है पूरे मुल्क के लिए है. जो कानून जम्मू कश्मीर के लिए है, क्योंकि अब 370 हट गया, वही सारे मुल्क में लागू. अगर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो रहा है तो आंध्रा और तेलंगाना के लिए क्यों नहीं? उनका सवाल ये है. मैं तो जैसे रेड्डी साहब भी ऐड करना चाहते हैं. एक सेकंड, रेड्डी साहब ऐड करना, फिर आपसे पूछेंगे आप. जी रेड्डी साहब. एक जो जज्बात खालिद साहब ने जाहिर किए, लोगों के अपने खुद की सरकार हो, मैं उसकी पूरी तरह से तायद करता हूं कि इलेक्टरल प्रोसेस, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये बहुत जरूरी है. ये इस तरह से लगातार प्रेसिडेंट्स रोल को चलाते रहे, सालों साल चलाते रहे, ये बिल्कुल गलत है. ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत एक धब्बा मैं समझता हूँ. मेरी एक ही दरखास्त है खालिद साहब से, क्योंकि वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं. मैं खालिद साहब, मेरी एक दरखास्त है कि आप इस बात को पहुंचाइए अमित शाह जी के यहाँ, नड्डा साहब के यहाँ, हो सके तो प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ जरूर कीजिए आप डिलिमिटेशन, मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकती कोई कानून. उसके तहत कीजिए आप. बेशक मैं चाहूंगा कि आप बेशक वहां पर डिलिमिटेशन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक कानूनी तरीके से, सही तरीके से हो, और उसका फायदा तेलंगाना में, आंध्रा में बैठे हमें भी मिलेगा. रेड्डी साहब, पहले तो कि मैं आपके पास आऊंगा रविशंकर साहब, पहले खालिद साहब जवाब दे दे. आपकी बात वाजिब रखती है कि तेलंगाना में भी जो भी होना चाहिए. तो बट मैं चाहता हूं, मैं ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, ये किसी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बनाया है. इट इज बीन मैंडेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो आप बोलते हो कि notification by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legislative, और इसमें ये आप जरूर डिलिमिटेशन कमीशन खैर वो तय बाद में होगा. मैं एक ही मैं आपके नॉलेज में मैं लाना चाहता हूं कि मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क में एक जैसा हो, या जम्मू एंड कश्मीर का जैसे पहले होता था अलग कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एक बार एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं हो सकते. ये बात समझे. दरखास्त करता हूं कि ऊपर पहुंचाइए ये बात. बेशक एस्पिरेशंस लोगों के पूरे हो. We will be very happy if people of Jammu and Kashmir get their opportunity to have an elected government. लेकिन do it as per the constitution, do it as per the law of the country. मैं वही कह रहा हूँ कि भारत सरकार जब भी कोई डिसीजन लेती है, इट अबाइड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप किसी को कोई शक है तो वो कोर्ट में जा सकता है, जुडिशरी पे जा सकता है, इट्स द सुप्रीम. बट एज अ इंस्टीट्यूशंस, this commission has been constituted by the Election Commission of India.
they follow certain norms and regulations. मुझे लगता है कि वो भी थोड़ी ऐसे कोई मेरे कहने पे कोई कमीशन बनेगा. So मुझे लगता है कि there are institutions to oversee it, and what I believe is that there should be elections. सीटें ज्यादा हो कम हो, it also strengthens the democracy. People like you go to court, it also strengthens the democracy. तो आवाज आनी चाहिए, मतलब it's good. इससे क्रॉस चेक एंड बैलेंस रहता है. लेकिन as far as the state UT of JNK is concerned, I think the early the Delimitation Commission submits report, our priority is elections will happen, and ताकि जम्मू वालों को अपनी चुनिती सरकार में चुनिती लोग मिले और कश्मीर में अपनी रहे, ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी ग्रास लेवल पे आ जाए. जी रविशंकर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Actually, to remove the imbalance caused due to uneven growth of population and electorate in different constituencies is the reason for making 1991 census as an asterisk, and going back to 2026 is the reason, number one. Number two, district reorganization, my friend is saying districts, 12 to 20 districts. District reorganization is different from State Reorganization Act. State Reorganization Act consists of parliamentary seats and also legislative assembly seats. And the basic structure and constitutional conventions have to be followed, because otherwise, why 546 seats have not been touched upon so far? Why in Andhra Pradesh it has not been increased upon? Why Jammu population is 53 lakhs and why Kashmir Valley population is 68 lakhs? Why Jammu gets 6 more seats and why Kashmir gets only 1 seat? So one man, one vote, one voice. Ultimate result of this is the constitution and delimitation. Therefore, delimitation is very important for MPs and MLA seats. Once delimitation, I am not on the point of my learned friend is saying that this is this. No, I am not on the point. The very government, nor even the election commission is competent to appoint delimitation commission after delimitation commission order is issued by the President of India, and it has become inappropriate in 2007. And kindly read Arun Jaitley's speech just before introduction of the bill in 2000 in Parliament, which says it can't be done. And delimitation died in 2008. How can you introduce delimitation now? It can't be done at all by anyone. Updating of delimitation here and then. Then what is the use? You can't jumble and mingle census and delimitation. Census is entirely different. Why are you for Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, and Manipur 2001 census, and only for Jammu and Kashmir 2011 census? That is on 6/3/2020. It becomes by 3/3/2021. Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, and Mizoram is removed. Why? Are they not the part of this country? Are they not part of this country? Andhra and Telangana are not part of this country. One nation, one constitution is not applicable to southern state or northeastern states. Only for North India it is applicable. Only for Kashmir particularly it is applicable. And if you talk like this, and it is destruction of this country and fabric of this country, election of this country, and my fundamental right to vote and go to the vote. And if I tell you, sir, in case one state is taken 91 census, 95 census, 2001 census, 2011 census, now Kashmir is taking 2019 delimitation. Tomorrow morning, once you have to settle the total country, MPs and MLA seats, it starts from Kashmir to Kanyakumari. What happens? You get a parliament seat more there. Can it be done by this? And again, you want to do in 2026? And if it is ultimately 170 has to be followed,
2026 and earliest possible 5 years thereafter means 31. You are doing it in 21. For the entire country, it is 31. What happens? Ultimately, you are classifying person to person, voter to voter, parliament constituency, and also assembly constituency, and northeast, and extreme east, and extreme south. This amounts to classification. Classification in Subramanya Swamy has been very specifically said it can't be done. Be that as it may, I am not on election law. I am not on delimitation law. Please talk about constitution at least. Article 170. Do you have any other article? And when 47 is amended and that has been upheld, when 16 in the same the Act of Reorganization of Jammu and Kashmir 2019, 63 says up to 2026 it should not be increased. The seats cannot be touched upon. You do anything, you do reorganization of entire constituencies, but you can't increase the seats. District reorganization, you do it. You made your point very clear, and I hope Supreme Court, your petition comes up for hearing pretty soon. रविशंकर साहब और खालिद जहांगीर साहब जो हैं, दोनों के आर्गुमेंट जो है वो अलग अलग जमीन पर है। खालिद साहब जो है वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं और रविशंकर साहब जो है वो लीगल आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। देश के लिए शशिधर रेड्डी साहब ने मिडिल ग्राउंड जो है वो लाने की कोशिश किया, जहां उन्होंने राजनीतिक आर्गुमेंट, पॉलिटिकल आर्गुमेंट और लीगल आर्गुमेंट को मिलाकर उन्होंने एक पॉइंट बनाने की कोशिश किया। देश के लिए, एक साथ के लिए, देश की एकता के लिए तमाम मुद्दों पर गौर करने के बाद यह है कि सरकार को एक बैलेंस जो है लाना पड़ेगा। कानून सम्मत डिलिमिटेशन हो, वो पूरे के पूरे कानून सम्मत तरीके से हो, इसकी वहां पे जरूरत है, और वो पूरे मुल्क के लिए एक ही तरीके से हो, ताकि देश में जो एकीकरण की जो बात चल रही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा मुल्क एक हो, वो सही मायने में न सिर्फ शब्दों में बल्कि भावना में भी वो सामने आ सके। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। रायसीना रिपोर्ट्स में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ऊपर तक पहुंचा दीजिए हमारा बात। जरूर, आदाब। कश्मीर आए? जरूर आएंगे। आया था। मैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन रहा, वहाँ दौरा, मीटिंग्स हुए सीएम साहब के वगैरह के साथ में। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में NN वोरा साहब के साथ सेमिनार्स भी किए, तो आना हुआ। इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, मगर हम दोनों एक दरखास्त है कि थोड़ा ऊपर पहुंचा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज ना करें। ये जो मतलब आप ही के पार्टी के लिए ये खराब होगा। आगे ये सब देखेंगे लोग। प्लीज कन्वे ऊपर। जरूर। थैंक यू एवरीवन।